Next question. Find the number of integral terms in the expansion of 3 to the power 1 by 2 plus 5 to the power 1 by 4 whole to the power 680. Find the number of integral terms in this expansion. Okay, तो इसका solution जो is so ये देखो, let the given expression be this one. We want to find the number of integral terms in its expansion. The general term in the binomial expansion of a plus b whole to the power n is given by t r plus 1 equal to nr a to the power n minus r b to the power r, where r is the ranges from 0 to n. So there, यहाँ पे n equal to क्या है? This is the value of a, this is the value of b, and this is the value of n. So देखो, a equal to 3 to the power 1 by 2, b equal to 5 to the power 1 by 4, n equal to 680. सब्सटीट्यूट दिस वैल्यू, द जनरल टर्म क्या बन जाएगा? ये टी आर प्लस वन, यहाँ पे n इक्वल टू 680 पुट करेंगे, a इक्वल टू 3 to the power 1 by 2, b इक्वल टू 5 to the power 1 by 4. तो पुट करने के बाद आगे ये जनरल टर्म सही है. फॉर टी आर प्लस वन टू बी इंटीग्रल टर्म टू कंडीशन मस्ट मीट. तो फर्स्ट क्या है? बाइनोमियल कोएफिशिएंट, मतलब दिस इज द बाइनोमियल कोएफिशिएंट मस्ट बी इंटीजर. This is always true for integer n and r, with r varying from 0 to n. The power of 3 and 5 must result in an integer. Power of 3 and 5 must result in an integer, क्योंकि यहाँ पे क्या बोला है? नंबर ऑफ इंटीग्रल टर्म्स, इंटीग्रल टर्म्स इन द फंड ना. तो देखो, इंटीग्रल टर्म्स के लिए नहीं कि बाइनोमियल कोएफिशिएंट इंटीजर चाहिए. पावर ऑफ 3 एंड 5 मतलब ये एक्सपोनेंट, ये जो एक्सपोनेंट है ना, मस्ट बी नॉन नेगेटिव इंटीजर, मतलब ग्रेटर और इक्वल टू 0. वी रिक्वायर ए इक्वल टू, देखो पहला कंडीशन के हिसाब से नहीं क्या, ये एक्सपोनेंट मस्ट बी नॉन नेगेटिव इंटीजर, और दूसरा क्या है? r by 4 मस्ट बी नॉन नेगेटिव इंटीजर. लेट्स एनालाइज द कंडीशन फ्रॉम कंडीशन बी. यहाँ से r by 4 must be integer. This means that r is must be multiple of 4. So here also, since r is the index in the binomial expression, r must be non-negative integer. So r greater or equal to 0. So r can be 0, 4, 8, 12. So yeah. So from condition A, consider 680 minus r by 2. So 680 minus r by 2 must be integer. This means 680 minus r must be an even number. Also, since r less or equal to n, मतलब 680, तो 680 माइनस आर ग्रेटर और इक्वल टू 0. सो 680 माइनस आर इक्वल इज अ नॉन नेगेटिव इंटीजर, क्योंकि यहाँ पे जो बोला है दिस इज अ मस्ट बी इंटीजर, मतलब ये 68 माइनस आर वो मल्टीपल इवन नंबर, मतलब इवन नंबर मतलब नहीं कि ये एन ए आर, सिंस आर लेस और इक्वल टू एन 680, तो 6 माइनस 80 माइनस आर ग्रेटर और इक्वल टू 0 एंड डिवाइड बाय 2 इज अ नॉन नेगेटिव. So 680 is an even number. For 680 minus r to be even, r must also be an even number, क्योंकि even minus even equal to even है ना. Now let's combine these two conditions. r is a multiple of 4, condition number A से. यहाँ से आगे r is a multiple of 4, यहाँ से मतलब ये r is a multiple of 4 of B से, और दूसरा क्या आगे यहाँ से even number r must be. तो r can be written as r equal to 4k लिख सकते हैं इसे, और सम इंटीजर की. Any multiple of 4 is automatically an even number. If r is a multiple of 4, then r is even, which satisfied condition A. Since 680 minus r would then be even. Therefore, the only effective condition we need to satisfy is that r must be a multiple of 4. दोनों कंडीशन में से ये satisfied होता है कि r is a multiple of 4. The value of r in the expansion ranges from 0 to n 680. n equal to 680 दिया ना. We need to find the number of integers r such that r varying from 0 to 60. So r is a multiple of 4, मतलब number of integer r फाइंड करना है. So r equal to क्या? 4k for some integer की. तो r की जगह 4 k पुट करो, तो ये क्या हो गया? 0 to 680, मतलब k varying from 0 to 170. नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीग्रल मतलब k क्या ग्रेटर और इक्वल टू 0. So 0 to 170 ये इंटीजर. फाइंड द नंबर ऑफ सच वैल्यूज. तो नंबर ऑफ सच वैल्यूज कितने होंगे? ये लास्ट वैल्यू माइनस फर्स्ट वैल्यू प्लस 1. देखो 170 माइनस 0 प्लस 1, दिस वन द नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ के. इस क्वेश्चन में अपने को क्या करना था? नंबर ऑफ इंटीग्रल टर्म्स के. देखो ईच डिस्टिंक्ट वैल्यूज, यही हो गया नंबर ऑफ इंटीग्रल टर्म्स के. नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ के मतलब नंबर ऑफ इंटीग्रल टर्म्स. क्योंकि अपने को इस क्वेश्चन में आर फाइंड करना है ना, द जनरल टर्म आर.
तो आर इक्वल टू क्या है 4k, मतलब 4k है ना, मतलब के फाइंड करना पड़ेगा, नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ के, नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ आर फाइंड करना। तो आर इक्वल टू 4k, तो कितने आ गए यहाँ पे 171। सही। ईच डिस्टिंक्ट वैल्यू ऑफ के करस्पॉन्ड टू डिस्टिंक्ट वैल्यू ऑफ आर। सही है, यहाँ पे लिखा ही ईच डिस्टिंक्ट वैल्यू ऑफ के करस्पॉन्ड टू डिस्टिंक्ट वैल्यू ऑफ आर विच टर्न्स टू डिस्टिंक्ट इंटीजर टर्म्स इन द एक्सप्रेशन। अभी आगे वेरीफाई किया के इक्वल टू आर जीरो, आर इक्वल टू जीरो पुट किया तो देखो ये 3 टू द पावर आता है, ये किस में पुट कर दिया जनरल टर्म में, जो ये लिख, देखो ये इसमें क्या पुट किया एन इक्वल टू आर इक्वल टू क्या पुट किया यहाँ पे, देखो के इक्वल टू जीरो, आर इक्वल टू जीरो, आर इक्वल टू जीरो पुट किया किसमें, इसमें वैल्यू आ गई है। देन के इक्वल टू वन, तो के इक्वल टू वन पुट किया तो आर तो 4 हो जाएगा, क्योंकि आर इक्वल टू क्या 4 के पुट करने के बाद ही आता है। देन के इक्वल टू 170 पुट किया जाए तो आर इक्वल टू 680 पुट करने के बाद देखो 5 टू द पावर इज इंटीजर, पूरी की पूरी इंटीजर, मतलब 171, देयर इज अ 171 इंटीग्रल टर्म्स इन दिस एक्सप्रेशन। नेक्स्ट